اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے دن پہلی بڑی خوشخبری والی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے، حالانکہ انٹرنیشنل ہے لیکن ہندوستان کے لوگوں کو بھی سن کر بڑی خوشی ہوگی۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ جی ہاں، ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ آپ کو یاد ہوگا سویڈن میں ایک مردود جس کا نام سلوان سبا مومکا، جس نے بار بار قرآن شریف کی بے حرمتی کی، اسے جلانے کی کوشش کی اور چوراہوں پر اس نے قرآن مقدس کی توہین کی۔ اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ قرآن شریف کی بے حرمتی کرنے والا ملعون مومکا ناروے میں مردہ پایا گیا۔ سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والا عراقی پناہ گزین سلوان سبا مومکا ناروے میں مردہ پایا گیا، اس کی لاش ملی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق پولیس نے گستاخ قرآن کی لاش ملنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ مومکا سویڈن میں مظاہروں کا اہتمام کرنے کے لیے مشہور تھا، جہاں اس نے کھلے عام پولیس کی حفاظت میں قرآن کریم کو نظر آتش کیا تھا، آگ لگایا تھا۔ اس سے پہلے مومکا نے اپنی آخری پوسٹ میں لکھا تھا کہ آج میں نے سویڈن چھوڑ دیا اور اب نارویجن حکام کے تحفظ میں ہوں۔ میں نے ناروے میں پناہ اور بین الاقوامی تحفظ کے لیے درخواست دی ہے، کیونکہ سویڈن فلسفیوں اور مفکرین کے لیے نہیں بلکہ صرف دہشت گردوں کے لیے پناہ قبول کرتا ہے۔ خیر، یہ بڑی پیاری خبر آئی بھی ہے کہ اس کی لاش ملی ہے اور وہ مردہ پایا گیا ہے۔ بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے حیدرآباد سے۔ جی ہاں، مدرسہ عالیہ وہاں پر حیدرآباد میں مدرسہ عالیہ کے احاطے میں غیر قانونی مورتیاں رکھ دی گئی۔ حیدرآباد کے قدیم ترین تاریخی اسکول مدرسہ عالیہ میں مورتیاں بھی رکھی گئی اور شر پسندوں نے پوجا پاٹ بھی شروع کر دی ہے۔ مدرسہ عالیہ حیدرآباد کا قیام، قدیم ترین یہ اسکول ہے جس کا قیام 1872 عیسوی میں عمل میں آیا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب یہاں شہر کے اشراف، بڑے بڑے شریفوں کے بچے یہاں تعلیم پایا کرتے تھے۔ یہاں سے کئی مایہ ناز شخصیتوں نے تعلیم پائی، جن میں سالار جنگ اول بھی
शामिल है। अब इस इहाते में गवर्नमेंट हाई स्कूल यानी बॉयज आलिया कायम है। इस स्कूल के क़याम के 150 साल का जश्न भी मनाया गया था 23 नवंबर 1999 को। इस मदरसे के इहाते में 1937 से 1949 के मैट्रिकुलेशन ब्याज के तलबा इकट्ठा हुए थे और वहाँ एक यादगार तख्ती नस्ब की थी जिसमें उस बैच को दर्स देने वाले असातिज़ा के अस्माए गिरामी दर्ज किए गए थे। कुछ शरपसंद अनासिर ने इस यादगार के ऊपर छोटी मूर्तियों को रखकर उनकी पूजा शुरू कर दी है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस जानिब फौरी तवज्जो देते हुए शहर के माहौल को ख़राब होने से बचाए और मदरसे आलिया के अहाते से उन मूर्तियों को निकालें। जी हाँ, ये उसी जगह पर मदरसे आलिया है जहाँ पर मुसलमानों के एक बड़े लीडर मेंबर पार्लियामेंट भी है जो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के लीडर बनते हैं और वहाँ पर उनके 7-7, 8-8 MLA भी है। उसी शहर में चार मीनार जो मस्जिद है उसी को लगकर पहले छोटी सी मूर्ति रखी गई थी, अब वो बहुत बड़ी मूर्ति हो गई है। तो जहाँ पर मुसलमानों के बड़े लीडर कहे जाने वाले मौजूद है, जहाँ खुद मेंबर पार्लियामेंट मुसलमान, जहाँ 7-7, 8-8 MLA मुसलमान, उस शहर का ये हाल है कि पहले चार मीनार के पास मूर्ति रखी गई और अब वो छोटी से बड़ी हो गई, कई फीट की हो गई और अब मदरसे आलिया में भी मूर्ति रख दी गई। आइए बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, बार बार राहुल गांधी इस बात को कहते आ रहे हैं कि देखो चाइना घुस गया है, मगर हमारे यहाँ की रखेल मीडिया इसको छुपाती है, हुकूमत की दलाली करती है। 56 इंच का सीना चाइना से इतना डरता है कि चाइना का चा भी उसकी जबान पर नहीं आता है। अब खबरें आ रही है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कई मकामात का नाम भी बदल दिया। आप अंदाजा लगाए। अब हुकूमत ढकोसले के आंसू रोते हुए और गीदड़ भपकी धमकी देते हुए कह रही है कि चाइना का अरुणाचल प्रदेश के मकामात का नाम बदलना ये बेवकूफ़ी है, अहमकाना है। और हमारे वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने चाइना को जम कर लताड़ा। अब कितनी जम कर लताड़ा वो तो वही जानते हैं। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा, वज़ीर ख़ारिजा ने यही कहा है। तो लोग यही कहते हैं ना भाई कि मुल्क में भी तुम जिनके एहसानात तले दबे हो उनके भी नाम बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा। जिनके एहसानात हैं एहसानात है। हाँ, चाइना घुसकर इतनी बदमाशी कर रहा है और तुम उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो तुम 56 इंच का सीना इंतहाई बुज़दिल और कमज़ोर सीना है और मुल्क कमज़ोर हाथों में। ऐसा अब अपोजिशन पार्टियां ज़बरदस्त अंदाज में बीजेपी पर और नरेंद्र मोदी पर हमला करती हुई नजर आ रही है। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, CBI का यौम तासीस का दिन था, यानी जिस दिन CBI की बुनियाद रखी गई। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने जबरदस्त अंदाज में CBI और तमाम तफ्तीशी एजेंसियों को मशवरा दिया। क्या मशवरा दिया कि जनाब, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए जो खतरा बनने वाले जराइम हैं उन पर तवज्जो दीजिए, उन पर तवज्जो दीजिए। जो मुल्क की सिक्योरिटी और मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन रहे हैं उन पर तवज्जो दीजिए। लेकिन आप जानते हैं कि CBI और ED और तफ्तीशी एजेंसियां उन पर तवज्जो नहीं दे रही है। CBI, तफ्तीशी एजेंसियां, ED ये सिर्फ अपोजिशन पार्टियों के करप्शन पर और उनको फंसाने और उनको कुचलने, दबाने और सत्ता के इशारों पर काम कर रही है और मुल्क की सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं दे पा रही है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ने इलेक्शन जीतने के लिए CBI और ED को अपनी अपोजिशन पार्टियों के लीडरान को दबाने, कुचलने, डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल करने का काम किया है। और तफ्तीशी एजेंसियां अभी फिलहाल सिक्योरिटी छोड़कर, मुल्क की हिफाजत छोड़कर वो इसी काम में लगी हुई है। शायद इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़ी बेबाकी के साथ CBI और तमाम तफ्तीशी एजेंसियों से कहा कि मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा बनने वाले जराइम की तरफ तवज्जो दीजिए। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, 1.5 आंख वाला बाबा, जी हाँ, जिसे लोग रामदेव कहते हैं, जो कभी शलवार पहनकर भी भागा था अपने आप को बचाने के लिए, लेडीज के कपड़े पहनकर भीड़ से निकल गया था, उसी रामदेव बाबा को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त लताड़ा।
पतंजलि के अपनी दवाओं को एलोपैथिक और अंग्रेजी दवाओं से बेहतर बताने वाले, करार देने वाले विज्ञापनों, इश्तिहारात से मुताल्लिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव और कंपनी के एमडी आचार्य बालकृष्ण को लताड़ लगाई और कहा कि अदालत में मामला जेर समाअत होने के बावजूद तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुमराहकुन दावे और कानून की खिलाफ वर्जी क्यों की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफ़ी मांगने का तरीका काबिल कबूल नहीं है, नताइज भुगतने के लिए तैयार रहिए। ख्याल रहे कि पतंजलि आयुर्वेद के गुमराहकुन इश्तिहारात मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण मंगल को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस हुमा कोहली और जस्टिस आसनुद्दीन अमानुल्लाह पर मुश्तमिल बेंच ने इस केस में समाअत करते हुए कहा कि केस में दोनों का बयान हलफी कहाँ है। उस पर रामदेव के वकील ने कहा कि दोनों ने माफी मांग ली है और दोनों अदालत में मौजूद है। उस पर अदालत ने कहा कि ये अदालती कार्रवाई है, इसको हल्के से नहीं लिया जा सकता, हम आपकी माफी कबूल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 नवंबर के अदालती हुक्म के बावजूद रामदेव और बालकृष्ण और पतंजलि ने अगले दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो खैर रामदेव बाबा इसलिए भी घमंडी है क्योंकि सत्ता का हाथ उसके सिर पर है। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आपको याद होगा कोरोना के जमाने में कोरोना का जिम्मेदार तबलीगी जमात को एक बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट ने कोरोना का जिम्मेदार तबलीगी जमात को कहा था, लेकिन अब खबरें आ रही है कि वही जिसने कोरोना का जिम्मेदार तबलीगी जमात को कहा था, बीजेपी का भी मेंबर है, वो मेंबर है पार्लियामेंट, वो एमपी कांग्रेस में शामिल हो गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। टिकट कटने से नाराज और कोरोना का जिम्मेदार तबलीगी जमात को करार देने वाला अजय निषाद ने बीजेपी छोड़ दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसके इत्तला दी। उसके कुछ देर बाद ही दिल्ली में कांग्रेस में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है। अजय निषाद ने बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है, इससे वो दुखी है, इसलिए बीजेपी की रुकनीत से इस्तीफा दे रहे हैं। अब कांग्रेस उन्हें मुजफ्फरपुर से लोकसभा का उम्मीदवार बना सकती है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के लीडर वजीर आतिशी, इनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी के मजीद 4 लीडरों को बीजेपी गिरफ्तार करवाएगी। उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात पर कहा है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले अपोजिशन लीडरों को निशाना बनाना मुल्क के लिए खतरनाक सूरत हाल है। एक्चुअल में डरा हुआ राजा बिल्कुल डर और खौफ के मारे, इलेक्शन हारने के डर से इतना डरा हुआ है कि इलेक्शन से पहले बाकायदा वो अपोजिशन लीडरों को ईडी सीबीआई के जरिए धमका रहा है और जेल की सलाखों में डाल रहा है और किसी भी तरीके से वो अपोजिशन को दबाने और कुचलने का काम कर रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी ने भी ये दावा कर दिया है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले हमारी पार्टी के 4 लीडरों को और गिरफ्तार किया जाएगा। और कश्मीर से उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अपोजिशन लीडरों को निशाना बनाना ये मुल्क की जमहूरियत के लिए खतरनाक सूरत हाल है और बीजेपी बिल्कुल घटिया स्तर पर आ चुकी है और बिल्कुल निचले से निचला और घटिया से घटिया काम कर रही है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट करें। अगला दिन रियासत महाराष्ट्र से बड़ी सियासी हलचल वाली खबर सामने आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में बीजेपी को जबरदस्त धचका लगा है। बीजेपी से नाराज, टिकट न मिलने से गुस्साए बीजेपी के लीडरान अब उद्धव ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। यानी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को जबरदस्त धचका दिया है। लोकसभा का टिकट न मिलने से नाराज लीडरान बीजेपी के उद्धव ग्रुप में शामिल हो रहे हैं।
इलेक्शन के पस मंजर में मुख्तलिफ जमात में इनकमिंग और आउटगोइंग शुरू हो गई है, यानी इधर से टिकट नहीं मिला तो उधर, उधर से नहीं मिला तो इधर, यानी इनकमिंग और आउटगोइंग शुरू हो गई है। पिछले कुछ महीनों के दौरान कांग्रेस समेत मुल्क भर के कई अपोजिशन पार्टियों के कई रहनुमा भारतीय जनता पार्टी और उसकी इत्यादि जमातों में शामिल हो चुके हैं। वहीं पर बीजेपी में टिकट न मिलने से नाराज होकर कई बीजेपी के लीडर कांग्रेस और बीजेपी की अपोजिशन पार्टियों में शामिल हो चुके हैं। तो इस वक्त महाराष्ट्र में भी काफी धचका लगा है बीजेपी को। हमारे अपने जलगांव के मौजूदा यानी जो हाल में मेंबर पार्लियामेंट थे उन्मेष पाटिल, वो अब उद्धव ठाकरे ग्रुप में शामिल हो गए हैं और अपनी कलाई पर शिव बंधन बांध रहे हैं। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हमारे प्यारे प्यारे लाडले वजीर आजम, खुदा ने जिनको बहुत ही प्यारे अंदाज में झूठ बोलने की सलाहियत दी है, झूठ इतना प्यारा बोलते हैं कि सच भी उसके सामने शर्मा जाता है, फेल हो जाता है। अभी उन्होंने कहा है कि अगर मुझे तीसरी मर्तबा भाइयों बहनों वजीर आजम बना दिया गया तो हर बदउन्वान के, हर करप्शन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। हंसी भी आती है। जितने करप्शन करने वाले हैं वो सब के सब अपने आप को बचाने के लिए इनकी गोद में बैठ चुके हैं, मोदी जी की गोद में बैठ चुके हैं। अब अपोजिशन के लीडरों पर तो कार्रवाई मोदी जी करवा रहे हैं और नाजायज भी करवा रहे हैं, नापाक तरीके से भी करवा रहे हैं, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, जितने करप्शन करने वालों को पता है कि हम पकड़े जाएंगे, वाकईतन हमने सच में करप्शन किया, तो वो सब के सब मोदी जी के पास में जा चुके हैं। तो अब बताइए किस पर मोदी जी कार्रवाई करवाएंगे? वजीर आजम ने, मोदी जी ने तो बड़े बड़े करप्टेड लोगों को अपनी गोदी में ले लिया है, लेकिन फिर भी बड़ी शान से झूठ बोलने की सलाहियत अल्लाह ने उनको बड़ी खतरनाक दी है। और उनके चेले चपाटे भी, नड्डा का बयान आया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का बयान आया कि मोदी जी ने सियासी कल्चर को तब्दील कर दिया है, यानी बहुत बड़ा काम किया है। तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल तब्दील किया है। मोदी जी ने पूरी सियासत की वाट लगा दी है, जमहूरियत सेकुलर राजिम का पूरा मर्डर और कत्ल कर दिया है और मोदी जी ने नई सियासत की बागडोर डाली है। अपोजिशन को दबाना, कुचलना और जमहूरी तरीके से जहां वो हार गए वहां पर फिर लोगों को, विधायकों को खरीद लेना और फिर वहां पर अपनी सरकार बनाना। तो सचमुच मोदी जी ने सियासी कल्चर को बदल दिया है, यानी नड्डा ने गलत नहीं बोला है। आइए आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, कश्मीर के बड़े कद्दावर नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस, यानी जो इंडिया इत्तेहाद बना है, उसका वजूद आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए अमल में आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि इंडिया अलायंस का वजूद संविधान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमल में आया है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस जो है वो संविधान की हिफाजत के लिए उतरा है और उन्होंने कहा कि अलायंस आइन को, संविधान को दफन होने नहीं देगा, क्योंकि मौजूदा सत्ताधारी बीजेपी, केंद्र सरकार और मोदी सरकार संविधान को खत्म करने के लिए और संविधान को बदलने के लिए मेहनतें कर रही है, लेकिन इंडिया अलायंस ऐसा होने नहीं देगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो अंबेडकर जी के आइन की हिफाजत करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें जान भी क्यों ना देना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस मजबूत है और कोई भी इसको तोड़ नहीं सकता है।